Robin Uthappa was there on Lallantop yesterday. So Lallantop is a political platform which discusses, politics, sports, and everything, just like any other news channel does. So they have this platform wherein they call celebrities and athletes and poets and novelists and authors, etc., and film stars, and they promote everybody. So as in the form of an interview. So Robin Uthappa was there, and he was there to discuss cricket. In cricket, he discussed the difference in the captaincy styles of Rohit Sharma and Virat Kohli. And he also spoke about Yuvraj for a bit. So we'll come to that later. Once we will establish a premise, then we'll come to it. So he drew a comparison between Virat Kohli and Rohit Sharma, wherein he said that Rohit Sharma's captaincy is easygoing and he reaches down to the level of the player, any particular player, and speaks to him, talks to him how he can bring the best out of him. And then he helps them to perform as per their potential. In contrast, Virat Kohli's style is a little more aggressive, and he expects or perhaps encourages or for that matter compels the rest of the players to reach his level of fitness, his level of commitment per se, and he asks them to follow a certain kind of diet to achieve that fitness. He asks them to follow a certain kind of regime to achieve that match fitness, etc. And saying this in context, it was said by Robin Uthappa that both kind of way of working style, both working style works out and gives result. But in Rohit Sharma's case, it makes people comfortable, and players are willing to do more. And in Virat Kohli's case, people, or for that matter players, they get a little uncomfortable because they are they're pushed out of the comfort zone. So obviously, अगर कोई आपसे मेहनत करने को कह रहा है, if somebody is asking to do in the hard work, put in the hard yards, you're not going to like them, right? आप स्कूल में थे, आपसे लोग पीटी कराया था टीचर, आधे घंटे की पीटी क्लासेस होती थी, स्पोर्ट्स क्लास होती थी, उसमें वो आधे घंटे पीटी कराए थे, तो जाहिर सी बात है अच्छा तो लगेगा नहीं वो, पर वो एक प्रेमाइस होता है, एस्टैब्लिश करते हैं, वो एक से इट्स अ मीज़ा प्ला जो रेस्टोरेंट की भाषा में कहते हैं ना कि प्री प्रिपरेशन जो होती है, तो वो होती है. So yeah, again coming back to the topic, so people generally do not like Virat Kohli's style of play wherein he is very focused on the fitness levels. That is fine. But in the same vein, he ended up saying that Yuvraj Singh's career ended because of this kind of issue, wherein Virat Kohli was the captain back then, and Yuvraj Singh apparently had requested for a 2-point exemption in the fitness test. I think they have this yo-yo test wherein I'm not too sure what is the exact number, 16.5 or 17 is the passing mark, or maybe less than that, or maybe more than that, I'm not too sure. But Yuvraj Singh had asked for a 2-point exemption in certain kind of point system, which would allow him to play, because post-cancer his fitness levels had gone down drastically. So उसमें उनको एग्जेम्पशन नहीं मिला वो, तो उस वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली युवराज सिंह का करियर एंडेड देन एंड देयर. एंड सिंस ही वाजंट आल्सो नॉट इन द प्लान्स फॉर द 2019 वर्ल्ड कप, ही इफेक्टिवली हंग हिज बूट्स. अब इसमें रॉबिन उथप्पा का कहना था कि अगर वो उसमें एग्जेम्पशन मिल जाता, विराट कोहली कर सकते थे, तो युवराज सिंह का करियर लंबा हो सकता था, एट्सेट्रा. आप लेकिन इसमें सोचिए, आप अगर इसको ध्यान से पूरी उसकी बात सुनेंगे ना, जहां वो एग्जेम्पशन मांग रहा था युवराज सिंह के लिए और कह रहा था कि विराट कोहली की इफेक्टिवली वाज सेइंग दैट इट वाज विराट कोहली हु एंडेड हिज करियर. ये आपको कहीं से लग नहीं रहा, वो सुनने में आता है कि जैसे सरकारी संस्थानों में या कॉलेजेस या ऑफिस में आप कोटा सिस्टम मांग रहे हैं कि भाई फलाना विकलांग कोटा से हैं, तो जो 50 नंबर कट ऑफ है उसमें से आप उनके 20 नंबर कम आए हैं तो आप 30 नंबर पे उनको भर्ती कर दो. ऑफिस में, डेस्क जॉब में तो इट्स फाइन, इफ इट्स अ टीचिंग जॉब व्हाटएवर, आप बैठकर पढ़ा सकते हैं, आप बैठकर फाइलें बना सकते हैं, आप बैठकर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. पर दिस इज अ कंपैरेटिव स्पोर्ट, ये क्रिकेट है, यहाँ पे आप खेल रहे हैं, आपने भागना है पूरे मैदान में. आप स्पेशली आप शॉर्ट फॉर्मेट खेलते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट के तो प्लेयर ही नहीं है, आप न थे कभी, जो बात कर रहे थे वो भी नहीं रहे कभी. तो आप
उसमें आपको दौड़ना भागना है, दुनिया तमाम की फिटनेस है। तो इसमें रॉबिन उथप्पा कहता है कि अपने आप को ना ज्ञानी दिखाते हुए कि यू नो सौरभ, match fitness is very different from batting fitness. It's two different things altogether. Of course, everybody understands if you're just going to bat, you do not need that kind of fitness level. But he's not just playing as a batter, right? He has to be in the 11. If he's going to be in the 11, he's going to be put somewhere. And since you're playing shorter format, you're not going to be in slips for 50 overs or for full 20 overs, right? You're going to be placed somewhere where you have to run. And if you can't run, what is the point of you stepping on the field? Agar to for let's say for the sake of argument, if you were in such a great form wherein you're blistering runs, you're firing thunder from the bat, तब तो आप जॉर्ज ऑरवेल की तरह बोल सकते थे ना कि all men are equal but some men are more equal than the others. So definitely in this case, Yuvraj Singh was not that man who would be more equal than the others. तो अगर आप उस ब्लिस्टरिंग फॉर्म में होते, समझ में आता कि आपको दे दी जाती। लेकिन सर आपका फॉर्म भी उतना 90-80 का स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे थे, को बहुत ही स्लगिश, आप सिंगल आराम से, ये तो स्ट्रेच करने वाली बात है ना। 2000 में करियर स्टार्ट हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नायरोबी में, आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले थे, 80 रन बनाए थे उन्होंने, अच्छे, बहुत बढ़िया। एलन डोनाल्ड और पॉलक के टाइम पे बहुत अच्छा था। अब 2017 में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका करियर 2-3 साल और बढ़ जाए, एंड इट्स जस्ट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। तो स्पेशली आप, जाहिर सी बात है, अगर आपकी फिटनेस लेवल हाई हो तो समझ में भी आता है। तो इमेजिन ये किस तरीके की बातें कर रहा है ये रॉबिन उथप्पा के, और इस पर भी लोग डिबेट कर रहे हैं कि अच्छा विराट कोहली ने इसका करियर एंड कर दिया। ऐसे तो फिर कोई भी किसी का करियर एंड कर देगा, ऐसे तो बहुत लोगों के करियर एंड हुए हैं फिटनेस की लेवल से। सहवाग भी अनफिट हो गए थे, उनकी आँख की रोशनी जाती रही थी। He started playing with spectacles in the latter part of his career in IPL especially. He wore with the contacts. He wore the contacts. He played with that. Sometimes he was wearing spectacles as well. So जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप जब बैट्समैन हैं कि आई साइड कितनी है, आप बॉल रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप भाग पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप क्विक सिंगल ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे किसी करंट सिचुएशन में, आप फील्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत से मैचेस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने हमें क्यों हराए हैं? क्योंकि उनके प्लेयर्स ने हाफ चांसेस कन्वर्ट कर लिए कैचेस के। चाहे उस टाइम में भी फील्डर्स जब हम हारा करते थे, आप देख लीजिए फील्डर्स हुआ करते थे उनके, अडम बकर, जोहान्सबर्ग का तेंदुलकर का वो याद होगा ना, जो कैच बाउंड्री पर उसने पकड़ा था, उड़ के उल्टा फ्लिप। उस टाइम हर्शिल गिब्स हुआ करते थे, जॉन टी रोड्स थे, इतने एक से एक तुर्रम खान फील्डर थे। ऑस्ट्रेलिया में स्लिप्स में मार्क वॉस से लेके पता नहीं कौन कौन खड़ा रहता था, माइकल स्लेटर से लेके बहुत जाबाज फील्डर्स। तो ऐसे ही तो आप मैच जीतते हैं ना सर, है ना। जब आप कैचेस ही छोड़ देंगे यशस्वी जायसवाल की तरफ 4-4, तो कहाँ से आप मैच जीतेंगे? तो आप चाहे 80 रन बना लें चाहे 100 रन बना लें, 4 कैचेस की भरपाई थोड़ी होती है उससे। सिमिलरली अगैन, इफ यू नॉट फिट टू स्टेप ऑन द फील्ड विद द रेस्ट ऑफ द 10 प्लेयर्स, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बैटिंग आपकी चलिए बहुत अच्छी है, लेकिन किस्मत से आप आउट हो जाएंगे एक रन पे, फिर आप क्या करेंगे पूरे मैच? अपने आप को गिल्ट में रहेंगे। आई थिंक युवराज सिंह को ना ऐसे लोगों को इसको एक पब्लिकली फोरम पे आके बोल देना चाहिए, भैया मेरी वकालत मुफ्त में ना करो, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ अपने करियर में, मैं जीत चुका हूँ वर्ल्ड कप्स, मैं मैराथन सीरीज भी रह चुका हूँ, तो मुझे आपकी बेतुके बयान की जरूरत नहीं है। बिकॉज what happens is, these people like Harbhajan Singh and Yogaraj Singh and Robin Uthappa, they end up tarnishing the legacy of Yuvraj Singh, whatever he has achieved so far in his life. I have spoken about it earlier, I do not want to repeat it. So these people end up destroying his image. अभी क्योंकि लगता है ना कि वो पैसे दे रहा है, ये उसके दलाली करने आया हुआ है, कर तो रहा है ये किसी न किसी की, ये उसकी आड़ में रोहित शर्मा की दलाली कर रहा था, he was just pimping for रोहित शर्मा, है ना। सो ईदर वे, आई मीन आप करो, सामने से करो ना, आप उसको लेके साइड करके आप युवराज सिंह को लेके कहाँ बीच में घुस रहे हो? सो एनीवे, आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैड टू से। आप लोग बाकी इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, आपको लगता है कि ठीक है नहीं ठीक है, जो भी है वी कैन डिस्कस इट इन द कमेंट्स। सो नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विद डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट एथलीट्स, सो मे बी कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री। सो टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।